آپ کو بتائیں کہ ٹوبا کے شہریوں کو محفوظ اور آرام دہ سفری سہولیات میسر ہوں گی۔ گرین بسوں کی سروس کا آغاز 6 الیکٹرک بسیں ٹوبا سے پیر محل تک چلا دی گئی ہیں۔ الیکٹرک بسیں کھیکا بنگلہ روڈ کا روٹ استعمال کریں گی۔ 30 بس سٹاپ بنائے گئے، مسافر صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک سفر کر سکیں گے۔ الیکٹرک بسیں چلنے کے بعد سفر کرنے میں آسانی ہوئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گرین الیکٹرک بس سروس سے طلباء، ملازمین اور روزانہ سفر کرنے والے مستفید ہوں گے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں 6 الیکٹرک بسیں لاری گڈا ٹوبا سے پیر محل تک چلائی گئی ہیں۔ الیکٹرک بسیں صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک چلیں گی۔ ٹوبا ٹیکسنگ سے پیر محل روٹ پر الیکٹرک بسوں کے 30 سٹاپ بنائے گئے ہیں، جن میں جنرل بس اسٹینڈ ٹوبا، ڈی سی آفس، نادرا آفس، سبزی منڈی، ڈی ایچ کیو ہسپتال، 3 مرلہ اسکیم سٹاپ شامل ہیں۔ چک نمبر 296، 294، 297 اور ایگریکلچر یونیورسٹی سمیت چک 349، چک 298 اور 10 سٹاپ بھی گرین بس روٹ میں شامل ہیں۔ چک 347 گورنمنٹ ہائی اسکول، چک نمبر 347 حیدر شاہ موڑ، کھیکا بنگلہ موڑ، 30 موڑ، چک 307 اور چک 342 بھی روٹ کا حصہ ہے۔ اضافی آبادی شورکوٹ موڑ، نادرا آفس پیر محل، چک نمبر 319 غوثیہ چوک اور جنرل بس اسٹینڈ پیر محل بھی روٹ میں شامل ہیں۔ ایچ کیو ہسپتال پیر محل علیوں کو سفری سہولت فراہم کرے گی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ الیکٹرک بسیں چلنے کے بعد سفر کرنے میں آسانی ہوئی ہے۔ پنجاب حکومت نے مفت اور آسان سفر کی سہولت فراہم کی ہے۔ ٹوبا سے پیر محل تک الیکٹرک بسیں چلانے پر پنجاب حکومت کے شکر گزار ہیں۔ یونیورسٹی ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰਮਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜੀਦਾ। ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼। گرین الیکٹرک بس سروس سے طلباء، ملازمین اور روزانہ سفر کرنے والے شہری مستفید ہو سکیں گے۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبا ٹیکسنگ۔ فیصل آباد میں میٹرو بس روٹس پر تعمیراتی کام جاری ہے۔ جنگ روڈ چڑاوالا روڈ پر برج ختم کرنے کا فیصلہ، جبکہ زرعی یونیورسٹی نڑوالا روڈ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں نئے برج بنائے جائیں گے۔ میونسپل کارپوریشن 2 کروڑ کی لاگت سے برج تعمیر کرے گا۔ فیصل آباد میں میٹرو بس منصوبہ 6 کے روٹس پر تعمیراتی کام جاری۔ میٹرو بس روٹ جنگ روڈ پر جڑاوالا روڈ پر پیڈسٹرین برج ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ زرعی یونیورسٹی نڑوالا روڈ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں پیڈسٹرین برج تعمیر ہوں گے۔ میونسپل کارپوریشن 2 کروڑ کی لاگت سے پیڈسٹرین برج تعمیر کرے گا۔ ٹینڈر طلب کر لیے گئے۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے لیے بڑی ڈیولپمنٹ، شہر میں نیا گرین فیلڈ ایئرپورٹ بنانے کا منصوبہ، کنسلٹنٹ کی جانب سے ماسٹر پلاننگ فیزیبلٹی اسٹڈی پر کام جاری ہے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی نے 2000 ایکڑ جگہ کے لیے کمشنر کو درخواست دے دی ہے۔ چک جھمرا سمیت تحصیل صدر کے مختلف علاقوں کی جیو ٹیگنگ اور میپنگ ہوگی۔ فلائی زونز کو مد نظر رکھ کر سفارش کردہ مختلف جگہوں کی سیمپلنگ اور ارتھ کلیکشن کی جائے گی۔ فیصل آباد گرین فیلڈ ایئرپورٹ کا منصوبہ، کنسلٹنٹ کی جانب سے ماسٹر پلاننگ فیزیبلٹی اسٹڈی پر کام کیا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کو گرین فیلڈ ایئرپورٹ کے لیے 2000 ایکڑ جگہ درکار۔ فیصل آباد ایئرپورٹ اتھارٹی نے کمشنر فیصل آباد سے 2000 ایکڑ جگہ مانگ لی۔ نئے ایئرپورٹ کے لیے چک جمرہ سمیت تحصیل صدر کے مختلف علاقوں میں جیو ٹیگنگ میپنگ کرانے کا فیصلہ۔ فلائی زونز کو مد نظر رکھتے ہوئے سفارش کردہ مختلف جگہوں کے سیمپلز ارتھ کلیکشن کی جائے گی۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41، فیصل آباد۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 6 روپے 85 پیسے کمی کر دی گئی ہے۔ اوگرا نے مٹی کے تیل کی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 227 روپے 5 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں کمی کا اطلاق آج سے کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مٹی کے تیل کی قیمت 233 روپے 90 پیسے فی لیٹر تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مٹی کے تیل کی قیمت 6 روپے 85 پیسے کم ہوئی ہے۔ اوگرا نے مٹی کے تیل کی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 227 روپے 5 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ اس سے پہلے مٹی کے تیل کی قیمت 233 روپے 90 پیسے فی لیٹر تھی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں کمی کا اطلاق آج سے کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ماضی سال 2026 کے اختتام میں چند روز باقی رہ جانے کے باعث چنیوٹ کے ای رجسٹریشن سینٹر پر پراپرٹی کی رجسٹری کرانے والوں کا شدید رش دیکھا جا رہا ہے۔ شہری 1 جولائی سے متوقع ڈی سی ریٹس میں اضافے اور نئے ٹیکس ریٹ سے بچنے کے لیے جلد از جلد رجسٹری مکمل کرا رہے ہیں۔ ریونیو حکام کے مطابق 30 جون تک زیادہ سے زیادہ رجسٹریوں کا عمل مکمل کیا جائے گا تاکہ فائلوں کا بیک لاگ نہ رہے۔ سینٹر پر صبح سے شام تک لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 1 جولائی سے پراپرٹیز کی ڈی سی ریٹس میں اضافہ متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی
नए माली साल में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद मुख्तलिफ टैक्स रेट्स में कमी या इजाफे का इम्कान है, जिससे रजिस्ट्री महंगी हो सकती है। नए इजाफों से बचने के लिए हम मौजूदा माली साल में ही रजिस्ट्री करवा रहे हैं। ज्यादातर खरीदार और डीलर्स 30 जून से पहले दस्तावेजात मुकम्मल कराने की कोशिश कर रहे हैं। रेवेन्यू स्टाफ ने बताया कि अमले की तादाद बढ़ाकर शिफ्टों में काम लिया जा रहा है ताकि तमाम दरख्वास्तें मुकर्रर वक्त पर निपटाई जा सकें। उन्होंने शहरियों से अपील की कि तमाम मतलूबा कागजात मुकम्मल लेकर आएं ताकि आखिरी दिन रश के बायस किसी को दुश्वारी ना हो। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योर। महकमा माल की आबियाना रिकवरियों को ब्रेक लगे। फैसलाबाद से आबियाना सालाना टारगेट 1 अरब 23 करोड़ में से सिर्फ 67 करोड़ की रिकवरियां हो सकेंगी। फैसलाबाद की तहसीलों में आबियाना ज़रई इनकम टैक्स की रिकवरी सुस्त रवि का शिकार है। फैसलाबाद की 6 तहसीलों से आबियाना कीमत में 56 करोड़ रिकवरी होना बाकी है। ज़रई इनकम टैक्स के 19 करोड़ सालाना टारगेट में से 17 करोड़ इकट्ठा किया जा सका। तहसील सदर और सिटी समंदरी, तांतियावाला, जड़ावाला, चकझुमरा में रिकवरियां सुस्त रवि का शिकार हैं। चिन्नौर शहर का इलाका मोहल्ला हाजी आबाद में इंतजामी अदम तवज्जो का शिकार। हाजी आबाद में जगह जगह सीवरेज का पानी जमा, गलियां पानी से भर गई हैं, बच्चे बीमार होने लगे। गंदे पानी से अहले इलाका शदीद अजियत में मुब्तला हैं। इलाका हाजियाबाद इंतजामी अदम तवज्जो का शिकार। मोहल्ला हाजियाबाद में वासा इंतजामिया की मुबैना गफलत, जगह जगह सीवरेज का पानी गलियों में जमा हो गया, बच्चे बीमार होने लगे। गंदे पानी से अहले इलाका अजियत में मुब्तला। इलाका मकीन कहते हैं कि यहाँ 15 दिन से पानी जमा है, हम गंदे पानी में रहने पर हुए हैं। मुतादिद बार दरखास्त कर चुके हैं मगर इंतजामिया का कोई शख्स नहीं आया। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ रहना इंतहाई मुश्किल है। मजीद कहा कि डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा है कि मोहल्ला हाजियाबाद के मसाइल पर सख्त एक्शन लें। ਭਈਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੇਵਰੇਜ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਗੱਲ ਨਾ। ਸੇਵਰੇਜ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਮੋਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। सर मुतालबा यही है कि गफूराबाद का पानी जो है सारा इधर आ रहा है। बारिश जब होती है, बारिश ख़त्म होने के बाद तकरीबन 1 घंटा तक पानी आता रहता है और हमारे घरों के नीचे से जो है ना पानी गुजरा हुआ, घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। शहर में इस तरह की सूरत हाल वासा इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अलीजेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्नौर। फैसलाबाद के सुबहान अल्लाह चौक से मुल्हिका सीवरेज नाला खुला छोड़ दिया गया। स्लैब और हिफाजती दीवार न होने से हादसात के खतरात बढ़ गए। मुतादिद बच्चे नाले में गिर चुके। इलाका मकीनों का इंतजामिया से फौरी एक्शन का मुतालबा। शहरियों का कहना था कि अरसा दराज से सीवरेज नाले की हिफाजती दीवार मौजूद नहीं। मुतादिद बार बच्चे नाले में गिरने के वाक़यात पेश आ चुके। मुतल्लिका इंतजामिया से मुतालबा है कि फौरी स्लैबें और हिफाजती दीवार मुकम्मल की जाए। चिन्नौर जंग रोड तजावुजात का गढ़ बन गया। सड़क के दोनों जानिब नाजायज पार्किंग कायम, तजावुजात के बाद शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस इस जानिब कोई तवज्जो नहीं देती। चिन्नौर जंग रोड तजावुजात का गढ़ बन गया। जंग रोड के दोनों अतराफ नाजायज पार्किंग कायम, तजावुजात के बाद शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं कि इस सड़क पर हर तरफ तजावुजात हैं, यहाँ पैदल चलना मुश्किल है। तजावुजात से ज्यादा यहाँ पर नाजायज पार्किंग कायम है मगर ट्रैफिक पुलिस ने कभी तवज्जो नहीं दी। हमारा इंतजामिया से मुतालबा है कि जंग रोड से तजावुजात को फिलफौर खत्म कराया जाए। मैं तो वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा कर सकता हूँ कि नजायज़ तजावुज़ात जो है वो उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि ये जो पैदल चलने वाले हैं इनको बड़ी मुश्किलात होती हैं और इन शहरियों के लिए कोई सहूलत बनाई जाए ताकि ये जो रक्षा स्टैंड है इनको अलहदा जगह दी जाए, वो अपने एक जगह पर खलो कर सवारी बिठा सकें। पार्किंग स्टैंड के क्याम के बगैर जंग रोड पर तजावुजात का मुकम्मल खात्मा नामुमकिन है। कैमरामैन अलीजेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्नौर। महकमा तालीम के तहत इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग करने वाले असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। ट्रेनिंग हासिल करने वाले असातिज़ा की कन्वेंस अलाउंस की कटौती नहीं होगी। महकमा तालीम पंजाब ने ट्रेनिंग हासिल करने वाले असातिज़ा का कन्वेंस अलाउंस जारी रखने का मुरासिला भी जारी कर दिया है। अपडेट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग करने वाले असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। ट्रेनिंग करने वाले असातिज़ा की कन्वेंस अलाउंस कटौती नहीं होगी। मौसम गर्मा की छुट्टियों में असातिज़ा का कन्वेंस अलाउंस काट लिया जाता है। महकमा तालीम का कन्वेंस अलाउंस जारी रखने के लिए CEOs को एजुकेशन का मुरासिला। कत्ल केस में उम्र कैद पाने वाले मुलजिम लाहौर हाई कोर्ट से बरी। अदालत ने सेशन कोर्ट जंग का उम्र कैद का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत का मुलजिम मोहम्मद इमरान साजिद को फौरी रिहा करने का हुक्म। इस दगा से इल्जाम शख्स से बालातर साबित ना हो सका।
चश्मे दीद गवाह का बयान काबिल एतमाद करार ना पाया। फाजिल अदालत का पोस्टमार्टम में ताखीर को अहम तफ्तीशी नुक्स करार दे दिया। असलहा बरामदगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट गैर मौसर करार, जबकि शक का फायदा मुलजिम का कानूनी हक है। अदालत ने सजा बढ़ाने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी है। टोबा में तरक्याती कामों की बहार, जिला भर में 20 अरब 49 करोड़ रुपए के तरक्याती मनसूबों पर काम तेज। डिप्टी कमिश्नर उमर मेला ने वाटर स्टोरी टैंक्स और ड्रेनेज मनसूबा 15 जुलाई तक मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट करें कि टोबा टैक्सी में डिप्टी कमिश्नर उमर मेला की ज़ेर-ए-सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। टोबा तहसील में 9 अरब 48 करोड़, कमालिया में 4 अरब 54 करोड़ और गोजरा में 6 अरब 47 करोड़ रुपए के मंसूबे जारी हैं। 209 किलोमीटर सीवरेज लाइनों की बहाली और तामीर पर काम किया जाने लगा। 4215 मैन होल कवर्स, 11.15 किलोमीटर ड्रेन सिस्टम और 16.26 किलोमीटर जदीद सीवरेज लाइनें मंसूबे का हिस्सा है। 12 पार्कों की बहाली, 195 किलोमीटर गलियों की तामीर और बहाली और कलरफुल टफ टाइल्स की तनसीब की जाएगी। 16.25 मिलियन गैलन योमिया इस्तेदाद के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 3 नए डिस्पोजल स्टेशन और 3 की बहाली भी मंसूबे में शामिल है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान ने ज़ेरे तामीर चिन्योट फैसलाबाद वन वे रोड का दौरा किया और मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। दौरे के दौरान डीसी ने मंसूबे पर जारी तामीराती सरगर्मियों, काम के मेयार, रफ्तार और मुख्तलिफ मराहिल का मुआयना किया। सड़क के दरमियान कायम ग्रीन बेल्ट पर जारी शजरकारी के काम का भी मुशाहिदा किया। एक्सीएन हाईवे मोहम्मद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर को मंसूबे की मजमूई पेशरफ्त, तकमील के मुख्तलिफ मराहिल और बाकी मानिद कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने कहा कि तमाम तामीराती काम मुकर्ररा मेयार के मुताबिक और मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने शहर के एरिया में जारी तामीराती काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत भी जारी की। डीसी ने ग्रीन बेल्ट पर ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने और उनकी मुनासिब देखभाल और सड़क के इतराफ खूबसूरती बरकरार रखने के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत की। उनका कहना था कि शजरकारी न सिर्फ माहौल को बेहतर बनाने में मुआविन साबित होगी बल्कि शहर की खूबसूरती में भी इजाफा करेगी। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि ज़िला इंतजामिया अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों की बरवक्त और मियारी तकमील को हर सूरत यकीनी बनाएगी। जंग में यौम आशूर के मौका पर जुलूस और मजालिस का पुरअमन इनेकाद किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डीपीओ साजिद हुसैन से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब की बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर डीपीओ साजिद हुसैन को शाबाश। जिला भर में मजमूई तौर पर 249 जुलूस बरामद हुए और 164 मजालिस से अज़ाब बर्पा की गई, जिनकी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। शहर में अमन अमान की मिसाली सूरत हाल और बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर आला पंजाब ने डीपीओ साजिद हुसैन से तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने यौम आशूर को पुरअमन बनाने, फौरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने पर डीपीओ जंग साजिद हुसैन और उनकी पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डीपीओ जंग साजिद हुसैन खुद फील्ड में मौजूद रहे और तमाम मरकजी जुलूसों और मजालिस की फिजिकल मॉनिटरिंग करते रहे। फैसलाबाद में सुबह भर के 9 तालीमी बोर्ड्स के लिए 3 साल बाद मुस्तकिल चेयरपर्सन के नाम फाइनल कर लिए गए। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अक्सा शबीर का नाम चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के लिए तजवीज़ कर दिया। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज अब्दुल्लापुर फैसलाबाद के प्रिंसिपल डॉक्टर इकबाल महमूद को तालीमी बोर्ड सरगोदा के चेयरपर्सन के लिए मुंतखब कर लिया गया। डॉक्टर अक्सा शबीर का नाम चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के लिए तजवीज़ कर दिया गया। डॉक्टर अक्सा शबीर लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर तैनात हैं। फैसलाबाद के डॉक्टर इकबाल महमूद को तालीमी बोर्ड सरगोदा के चेयरपर्सन के लिए मुंतखब कर लिया गया है। डॉक्टर इकबाल महमूद गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज अब्दुल्लापुर फैसलाबाद में बतौर प्रिंसिपल तैनात है। सर्च कमेटी ने 9 डिविजनल तालीमी बोर्ड्स के लिए चेयरपर्सन तैनाती की हतमी मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को सिफारिश भिजवा दी है। 3 साल से तालीमी बोर्ड्स में चेयरपर्सन के इख्तियारात मुतल्लिका डिविजनल कमिश्नर के पास थे। डीजी ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद का दौरा जंग, ज़राअत अफसरान, खादों स्प्रे डीलर्स के इजलास की सदारत की। सरकारी रेट पर खाद की फराहमी और काश्तकारों के लिए हुकूमती मनसूबों पर जारी कामों बारे तबादला किया।
सूबाई हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों और ज़रूरी अहदाफ के जायजे के लिए डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब चौधरी अब्दुल हमीद ने जंग का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने ज़राअत अफसरान, खाद और स्प्रे डीलर्स के हमरा आला सतह के जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें डायरेक्टर फैसलाबाद डिवीजन चौधरी खालिद महमूद और डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर खालिद इकबाल भी शरीक हुए। डीजी ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों को 300 बिलियन रुपए के लोन फराहम किए गए हैं। खुशाइंद बात यह है कि ज़रूरी कर्जों की रिकवरी की शरह 99% से जायद रही। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों को सरकारी रेट पर खाद की फराहमी जारी है। मार्केट में खाद की दस्तयाबी और कीमतों को बाकायदगी से मॉनिटर किया जा रहा है। इसका मेन मकसद जो हमारी किसान कार्ड प्रोग्राम है, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसमें 300 बिलियन के लोन्स हम इंटरेस्ट फ्री लोगों को दे जा चुके हैं और अभी जो तीसरी फेज़ की रिकवरी की है वो भी 99% है और जंग डिस्ट्रिक्ट की भी 99% से ऊपर रिकवरी हुई है। ये हमारे लिए बहुत खुश हैं। कपास और गंदम के आदाब पर रोशनी डालते हुए उन्होंने मजीद बताया कि पंजाब में रवां सीजन 32 लाख एकड़ के हदफ के मुकाबले में 28.5 लाख एकड़ पर कपास की काश्त की गई, जिसमें से जिला जंग में 35,000 एकड़ रकबे पर कपास की काश्त मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने वाजिया किया कि हुकूमती हिदायत पर गंदम की काश्त का टारगेट भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। डीजी ज़राअत तौसीर चौधरी अब्दुल हमीद ने बताया कि काश्तकारों को बेहतर सहूलियात देने के लिए दीगर प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से जारी है। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। महकमा सोशल वेलफेयर और TH के अस्पताल शोरकोट की जानिब से इंसदाद मनशियात के हवाले से सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। सुहेल ऑर्थर सोशल वेलफेयर ऑफिसर MS डॉक्टर मारियम दात ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में डिप्टी MS डॉक्टर ज़िशान मजहर, डॉक्टर मोहम्मद असगर, मेंबर कमेटी राय इजाज अकबर भी शरीक हुए। सदर प्रेस क्लब राना शाहिद महमूद, नायब सदर प्रेस क्लब चौधरी शहजाद और हस्पताल का दीगर अमला भी मौजूद था। सोशल वेलफेयर ऑफिसर सुहेल आर्थर, MS डॉक्टर मारियम दार, डिप्टी MS डॉक्टर चौधरी ज़िशान मसर और डॉक्टर असगर का कहना था कि नौजवान नस्ल मनशियात से तबाह हो रही है। पाकिस्तान में 75 लाख से ज्यादा अफराद मनशियात के आदी है, 22 से 25% तक खातीन मनशियात की आदी है, 5 लाख के करीब अफराद इंजेक्शन से मनशियात का इस्तेमाल करते हैं।